Limitations of statistics. This is part A of your economics subject, and we are doing chapter number 2 of statistics. Okay, we are continuing this chapter from last few classes, and we have almost come to an end, and this is your last topic of this chapter. Okay, little bit lengthy chapter, I know, but this is the last topic of your chapter, limitations of statistics. But before moving on to the limitations of statistics, we must understand and just brush up and recap what we have done in previous class. In previous class, students, we discussed the importance of statistics to the various units and bodies of the economy, like importance of statistics towards government, importance of statistics in economics, importance of statistics in business, and importance of statistics in economics planning. Now we will start today limitations of statistics. Like every coin has two sides, means there is one positive side as well as the negative side. Similarly, everything in this system has positive as well as negative aspects. Similarly, statistics is also very good and useful for understanding and solving the various issues of the economy, but it also has some drawbacks. Now, what are the drawbacks, or we can say disadvantages, or we can say limitations of statistics? We will discuss here in detail. Generally, they are summarized in this diagram. These are the limitations of your statistics. What are the limitations? Study of numerical facts only. Your statistics studies only numerical facts, and they ignore qualitative aspect. I already told you data is of two types, quantitative data and qualitative data. Quantitative data means key data which contains numbers and which can be measured in numbers, numerical form. So statistics ignores the quality aspect because it is very difficult to compare and analyze and use various statistical tools to calculate qualities. Statistics only focus on the numerical facts and figures which can be compared, where you can take out mean, median, mode and other averages. Okay, so there is a focus in statistics only on numerical facts, and the quality aspect is ignored, like intelligence, beauty, efficiency, effectiveness. All these are ignored in statistics. Only numerical data is focused to solve any economic problem. Now, statistics only studies aggregates of facts. They only studies a group of information. Single information cannot be studied in statistics. Can you give me one reason why? If I say Mr. A got 50 marks out of 100 in statistics, so what you will say? He got an average. He got 50% only. Okay, but you are comparing with whom? There is nobody in the other class. You don't have any other information. He overall result was how much, because you don't know how much other students, other persons scored in statistics. Okay, so there is single information cannot be compared, cannot be analyzed. Various mean, median, mode and other economic tools, statistical tools cannot be used on that information. For comparing, analyzing and using tools, एक एवरेज भी निकालना होगा तो you need data of 3 or 2 tests, isn't it? Minimum 2 variables, 2 marks, 2 test marks you require to find out the average. अगर एवरेज निकालना है कि मेरे 2 टेस्ट हुए यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में और मेरे कितने एवरेज आई, मेरे एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके लिए आपको 2 टेस्ट की इन्फॉर्मेशन, 2 टेस्ट के मार्क्स पता होने चाहिए. सिर्फ 20 आउट ऑफ 25 आए हैं, तो ये इससे आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट एवरेज जब तक 2 फिगर्स आपके पास नहीं होंगे? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो स्टैटिस्टिक्स focuses only on aggregates and single information. Part of data cannot be termed as statistics. Why? Because comparison as well as use of statistical tools and formulas, mean, median, mode, correlation, standard deviation is not possible. Their application is not possible on single fact or single information. We require group to compare, isn't it? That is why they study only aggregates. Now,
Statistical inquiry focuses on uniformity of data. Uniformity of data. What do you mean by uniformity? Uniform means एक जैसा. यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के आते हैं, तो यूनिफॉर्म क्यों स्कूल में पहन के आते हैं कि ताकि सब बच्चे एक जैसे ना लगे, एक जैसे लगें और उनके बीच में कोई भी डिस इनइक्वालिटी ना हो, ट्रीटमेंट में भी, लुक्स में भी एंड बिहेवियर में भी. ठीक है, एक जैसे लगे. ये नहीं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई बहुत अच्छे घर से आता है, कोई अच्छे घर से नहीं आता, कोई एवरेज घर से आता है. तो वी जनरली इंश्योर एंड अप्लाई यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म में आपको आना है तो ताकि सारे बच्चे एक जैसे लगें. कोई बहुत अच्छा घर से आया है तो वो बहुत शो ऑफ ना कर पाए, और जो गरीब बच्चे हैं वो अपने आप को कॉम्प्लेक्स पे ना लेके आ जाए. तो यूनिफॉर्मिटी, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्म वर्ड से आया, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना चाहिए. कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स तभी पॉसिबल है जब डेटा का यूनिफॉर्मिटी हो, सारे डेटा एक ही यूनिफॉर्म में हो, मतलब एक ही उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो. जैसे अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बोलूँ कि राम हैज़ 5'11" height and Shyam has 5'10" height and Radha has 5'6" height. Okay, 5 feet 6 inches height. तो here all are in height. height को हम measure कर रहे हैं, compare कर सकते हैं. तो हम we can draw a conclusion कि सबसे ज़्यादा height किसकी है, राम की है. उसके बाद किसकी height है, श्याम की है. एंड उसके बाद सबसे छोटी height किसकी है, राधा की है. इन तीनों में. उल्टा भी हो सकता है, खुश नहीं हो जब बॉयज़ कि हाँ गर्ल्स की हाइट कम होती है, बॉयज़ की हाइट ज़्यादा होती है. ऐसा नहीं है. ठीक है, गर्ल्स की हाइट भी अच्छी होती है. ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपका जो डेटा है उसको यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी वो एक होगी. जैसे अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि सोनू के 20 मार्क्स आए, मीनू के 30 मार्क्स आए और राधा के 35 मार्क्स आए आउट ऑफ 50. तो मार्क्स 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 होगा, यानी यूनिफॉर्मिटी है. एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ये नहीं बोल रहे कि सोनू का 50 kg वेट है, मीनू के 40 मार्क्स आए और राधा के जो है हाइट 5'11" है. ठीक, एक की हाइट है, एक की वेट है और एक के मार्क्स हैं. तो हाउ यू विल कंपेयर? कंपैरिजन ऑफ डेटा इज़ पॉसिबल इन स्टैटिस्टिक्स ओनली व्हेन द डेटा इज़ इन होमोजीनियस फॉर्म, यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन सेम होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होगी. इन्फॉर्मेशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि सबके मार्क्स 30 आने चाहिए. किसी के 30 आए, किसी के 25 आए, किसी के 55 आए. बट हमने एक टर्म की बात की, एक वेरिएबल की बात की, किसकी? मार्क्स की. अगर हम इनकम कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटी में, एक बिल्डिंग में 4 लोग हैं एक फ्लोर पे, उनकी इनकम को कंपेयर कर रहे हैं तो इनकम को ही कंपेयर करेंगे. ये नहीं बोलेंगे कि फ्लैट ए में जो बंदा रहता है उसकी हाइट इतनी है, फ्लैट बी की इनकम इतनी है, फ्लैट सी का कंजम्पशन इतना है और फ्लैट डी वाले की सेविंग इतनी है. तो कंपेयर कैसे करोगे? एक का सेविंग है, एक का इनकम है, एक का हाइट है, एक का वेट है. हाउ यू विल कंपेयर? तो फॉर कंपैरिजन फैसिलिटेट करने के लिए डेटा में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल की बात होनी चाहिए. मार्क्स हैं तो मार्क्स, सबके मार्क्स की बात होनी चाहिए. हाइट है तो सबके हाइट्स की बात होनी चाहिए. तभी कंपैरिजन और टेक्निक्स को अप्लाई आप कर पाओगे. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा इज़ मस्ट इन स्टैटिस्टिक्स. नाउ नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो रिजल्ट्स होते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, दे आर ट्रू ओनली टिल एवरेजेस. कैसे बता सकते हैं? कोई एग्जांपल सोच सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, ओके, लाइक अदर साइंसेस आर. इफ़ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट इन town is 3 per week, it doesn't mean that 3 theft have taken place on the first day of the week. There will be no more thefts in the week. Getting my point? अगर हम यहाँ पे बात करें एवरेज की तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. मैं अगर बात करूँ कि आई स्कोर्ड 15 out of 20 in first test and then I scored 20 on 20 in the second test, तो मेरा एवरेज क्या होगा? मेरी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुई है, इज़न्ट इट? लेकिन मेरा एवरेज क्या हो गया? फॉल कर गया. जब 2 टेस्ट की निकलेगी तो 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा.
तो एवरेज मेरा फॉल हो गया, बट मैंने फुल ऑन फुल लाया था इस बार, तो एवरेज पे आपका जो डेटा है वो शो तो करता है, बट रिजल्ट्स आर ओनली ऑन एवरेज, वो एग्जैक्ट नहीं है। अगला टेस्ट में हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊँ, मेरा रिजल्ट फॉल कर जाए और फॉल कर जाए, 10 मार्क्स आ जाएँ, या मैं पढ़ूँ नहीं, सरप्राइज टेस्ट हो जाए तो मैं और नीचे चले जाएँ, या मैं पढ़ के आई हूँ और अचानक से टेस्ट हो, पता है टेस्ट है, और मैं और अच्छे नंबर लेके आ जाऊँ, तो 20/20 फिर से लेके आ जाऊँ। तो दीज रिजल्ट्स आर ऑन एवरेज, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्ट सुनते हो तो वो एक एवरेज बेसिस पे होता है कि हाँ ये टेम्परेचर है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ रेन है। हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि जब भी वेदर फोरकास्ट में आएगा कि रेन है तो उल्टा ही होता है, रेन नहीं होती है, फनी वेदर हो जाता है, ठीक। तो दैट इज़ फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकती है। फ्यूचर प्रोडिक्ट कर रहे हो आप उसमें स्टैटिस्टिक्स के डेटा को लेके, और स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स होते हैं ऑन एन एवरेज ही सही होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सही होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होते हैं। वो एक एवरेज निकाला कि हाँ भाई इतनी रेनफॉल इस बार हुई है, हो सकता है कि लास्ट के 4 दिन में रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो गई हो कि ओवरऑल एवरेज आपका इम्प्रूव हो जाए पूरे रेनी सीजन का, वो ये भी होता है। मैंने ये भी देखा है कई स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल बिहार में, कि फर्स्ट हाफ में तो सूखा पड़ जाता है और सेकेंड हाफ में फ्लड आ जाता है, उनका एवरेज इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन लॉस हो गया दोनों तरफ से, आपकी क्रॉप दोनों तरफ से गई, तो सूखा पड़ा तो भी क्रॉप ख़राब हो गई, और जो फ्लड आ गया तो भी क्रॉप ख़राब हो गई, बट आपका एवरेज रेनफॉल सही आ गया, तो आपको वहाँ पे हेल्प नहीं मिल पाती। ओके, सो दिस इज़ द रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज एंड दे डू नॉट शो एक्चुअल थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज विदाउट रेफरेंस your results may prove to wrong. Statistical laws statistics can be used only by experts. What do you mean by this? Various techniques of statistics like mean, median, mode, okay, coefficient of correlation, price index, all these require a proper knowledge of these topics. What are their formulas? Without knowledge you cannot apply these tools and techniques and draw any conclusion or compare any data, right? So therefore it is said कि only those person can use statistics who have proper knowledge of statistics and their tools, their formulas and techniques, कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्या formula है, कैसे यूज़ करना है, and all these things. तो layman or ordinary person cannot use statistics for drawing conclusions or for making comparisons. Statistics is also prone to misuse. Now how it is prone to misuse? Yes, statistical data can be changed. Many experts, generally it is in the hand of experts only ना, they only know कि हाँ भाई क्या डेटा है, उसको कैसे यूज़ करना है। अगर हम उसको conclusions को change करना चाहते हैं, we can change the data also. How come? If I want to impress the investors and to show कि हमारे losses नहीं हुए और हमारे profits हुए, तो प्रॉफिट्स के फिगर्स की जगह हम एवरेज प्रॉफिट्स के फिगर्स अपने शो कर सकते हैं। कैसे? एवरेज प्रॉफिट, मान लो इस बार लॉसेस हुए हैं बट पिछली बार बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, और मैंने एवरेज निकाल दिया तो एक नॉर्मल प्रॉफिट शो कर गया, राइट। तो क्या हो गया, आप एग्जांपल से खुद ही ट्राई करके देखो। लास्ट ईयर सपोज प्रॉफिट 10,000 था, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया 5,000 का, तो 2 साल कॉन्जिक्यूटिव में एवरेज क्या आया, 10,000 माइनस 5,000, यानी कि एवरेज 5,000 प्रॉफिट रहा। तो लॉस हुआ है इस साल, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या दिख रहा है कि इनका प्रॉफिट रहा है 5,000 रुपीज़, या बहुत बड़ी फिगर कर लो तो 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपीज़। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर मैनिपुलेशन, यू आर प्लेइंग विद द डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल। आपने उसको वो टूल बना लिया, आप वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करके अपने डेटा को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप स्टैटिस्टिक्स को मिस यूज़ कर रहे हो ताकि आप इंफॉर्मेशन को अपने पर्पस के हिसाब से चेंज कर सको, मोल्ड कर सको। Statistical methods are no substitute for common sense. This is also very true. How come?
इफ़ आई से, अभी मैंने प्रॉफिट्स का एग्जांपल दिया एंड आई सेड कि योर प्रॉफिट्स, माय प्रॉफिट्स फॉर 5000 रुपीज़, जबकि इस साल हमको लॉस हुआ एंड हमने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया कि हाँ नहीं इनके तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वी शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी ओनली। एक तो ये एग्जांपल हो गया कि देयर इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉमन सेंस। आप उसको, अगर आपने कॉमन सेंस अपना यूज़ नहीं किया और आपने वर्ड नहीं पढ़ा ठीक से कि वो नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, तो फिर स्टैटिस्टिक्स आपको मिसलीड कर जाएगी और आपके इंफॉर्मेशंस कॉन्सेप्ट्स को इन्फ्लुएंस कर जाएगी, ठीक है, विच कैन बी हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो। सिमिलरली अगर एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल बुक्स में भी देखे मैंने कि सपोज़ एक फैमिली को रिवर क्रॉस करनी थी, फाइन, अब रिवर तो क्रॉस करनी थी, अब उसमें क्या हुआ कि उसने उसकी डेप्थ रिवर की देखी और डेप्थ रिवर की देखी और अपने सारी फैमिली मेम्बर्स की एवरेज हाइट निकाली, एवरेज हाइट तो निकाल ली। अब एवरेज हाइट उनकी जो भी आई, मान लो 5 फीट आई, लेकिन एक घर में 3 साल का बच्चा है वो 5 फीट का तो होगा नहीं, बट एवरेज हाइट तो 5 फीट की निकल आई। उन्होंने सोचा हाँ एवरेज हाइट जो है हमारी डेप्थ की ऑफ रिवर से ज़्यादा है और सारे फैमिली मेम्बर्स आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक थ्रेटनिंग हो गई टू योर कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स ने उसको भी ओवर पावर कर दिया। आपने एवरेज हाइट निकाली, आपको लगा कि हाँ भाई हमने तो स्टैट्स लगा दी, मैथ्स लगा दी और हम जो भी रिजल्ट होगा सही होगा, बट एक्चुअली हुआ क्या, वो 3 का बच्चा जो बहुत मुश्किल से 3 फुट का भी नहीं होगा एंड ही ड्रोन इन दैट रिवर। ओके, एवरेज हाइट तो थी 5 फीट और जो डेप्थ थी वो भी 4 फीट समथिंग थी, जो कि हमारी एवरेज हाइट से कम थी। तो तब तो बच्चों को निकल जाना चाहिए था, डूबना नहीं चाहिए था। तो आपको कोई भी चीज़, भले ही वो स्टैटिस्टिक्स ही क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लाइफ में आप इवेंट या हैपनिंग हो रही होती है, तो आपको अपना कॉमन सेंस को हमेशा अलर्ट रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट। तो नॉट ओनली दिस अप्लाइज ऑन स्टैटिस्टिक्स, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ की कॉमन शुड, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन शुड सेंस शुड बी देयर, और स्टैटिस्टिक्स उसको ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी कॉमन सेंस को ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, जो आजकल FB और व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशंस फ्लड होती हैं, उसमें आधी से ज़्यादा फेक होती है। और इसका और अच्छा एग्जांपल दूँ, जब आपका ये कोरोना अफेयर वायरस का दिखा रहे थे कि फला प्राइम मिनिस्टर ने शेर छोड़ दिए हैं, लायंस छोड़ दिए हैं सड़क पे, वो एक मूवी का सीन था, लेकिन लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया कि हाँ कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, अब तो लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं, आइसोलेशन में रहेंगे बिकॉज ऑफ योर लायंस सिटिंग ऑन द स्ट्रीट। तो ये कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड ऑलवेज बी देयर। कोई भी इंफॉर्मेशन को अडैप्ट करने से पहले, समझने से पहले और उसको एक्सेप्ट करने से पहले कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यही चीज़ें स्टैटिस्टिक्स को भी आपके कॉमन सेंस पे हावी नहीं होने देना चाहिए। Okay, so these were the limitations of your statistics. Now we have covered this entire chapter 2, and in this entire chapter 2 we have done meaning of statistics, that is in two senses, plural sense and singular sense, as well as we also did the features of statistics, the various statistical methods that are discussed: scopy, collection, organization, presentation, analysis and interpretation. फिर what is the nature of statistics, importance of statistics, functions of statistics towards your economy, towards your government, business, economic planning, etc., as well as, and today we also covered the last topic of the chapter, that is limitations of statistics. Now I am giving you one task, one question, that statistics is distrusted by some intellectual people. Can you give me the reasons? Yes, because statistics can be misused, because statistical laws are always not exact, because statistics is used by experts and experts can misuse statistics and impress the ordinary and layman's by the information and achieve their purposes whatever they like। उसके हिसाब से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो योर होमवर्क विल बी टुडे इज कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट, यही आपको लिमिटेशंस में से मिलेगा, हाउ यू विल रिमूव डिस्ट्रस्ट एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन। दिस इज योर टॉपिक फॉर योर assignment, plus you have to complete these notes. Okay, thank you class.